Hello everyone and welcome back on my channel. Today in this video, let me just ask you a question. Do these numbers, prime numbers, composite numbers, co-prime numbers, twin prime numbers, common factors, common multiples, prime factorizations, all these terms confuse you? So in this video, I will be covering these topics in a very simple way with the common mistakes, shortcuts, tricks in one single easy video. At the end of the video, I have solved the questions that I asked in my previous video and given some new questions. So do watch the video till the end to get maximum benefit out of it. So let's start. Prime numbers. What are prime numbers? Numbers other than 1 which have exactly two factors. What are these two factors? 1 and itself. Let's see what these numbers are. For example, 2. 2 has got just two factors, 1 and 2 itself. Similarly, 3 has got just two factors, 1 and the number 3 itself. So all these are the prime numbers till 100. There are total of 25 prime numbers till 100. They are being listed in here. One common thing you must note out here is 1 is a unique number that is neither prime nor composite. Okay? So the next thing is composite numbers. Numbers other than 1 which have more than two factors. One type of number are prime numbers and rest of the numbers other than 1 they are all composite numbers because they have more than two factors. What these two factors can be? For example, let's take an example of 4. 4 has got 1 as its factor, 2 as its factor and 4 itself as its factor. Similarly, if we take 12, 1 is its factor, 2 is its factor, 3, 4 is also its factor, 6 is factor and 12 itself. Okay, the factors and multiples topic I have covered in my previous video. If somebody has confusions, you can go and watch. I'll give you the link in the description box. Similarly, there are few points that are to be noted. First point is 1 is a unique number. Second thing is 2 is only even prime number. So the composite numbers and all क्या होते हैं composite numbers? Number 1 के अलावा जिनके 2 या 2 से ज़्यादा factors होते हैं उनको हम लोग composite numbers बोलते हैं. The next thing is even numbers and odd numbers. I guess everybody is clear with even and odd numbers. क्या होते हैं even and odd numbers? Even number वो number होते हैं जो कि exactly divisible by 2 होते हैं. Exactly divisible by 2 और उनकी जो unit place में क्या digits होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8. तो unit place में देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 0 है, ये 6 है. These are all divisible by 2. 2 से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा 0 आता है. दे आर ऑल इवन नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. 1, 3, 5, 7, 21, 19 एंड सो ऑन. ये जो नंबर्स होते हैं इनके पीछे के यूनिट डिजिट क्या होती है? इनकी यूनिट डिजिट होती है 1, 3, 5, 7, 9 यूनिट प्लेस पे होता है. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक to remember these numbers. Now the next thing is common factors. Common factor क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है. Common मतलब जो दोनों के अंदर common होंगे, सेम होंगे दोनों के अंदर. अब देखते हैं कैसे. A number that is a factor of two or more numbers. नंबर जो कि फैक्टर है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का. Two or two more than two numbers. For example, let's take the common factors of 12 and 16. पहले तो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं 12 के. अब फैक्टर निकालने के लिए तो आसान तरीका क्या मैंने बताया था लास्ट की मेरी वीडियोस में, दैट इज अ पेयर. वी फॉर्म द पेयर, ग्रुपिंग करते हैं हम लोग. कैसे कर रहे हैं? जैसे हमें 12 लेके आना है, 1 इंटू 12 कर दिया, दैट इज 12. 2 से देखते हैं, 2 इंटू 6 कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 12. फिर हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 4 जा, ये भी 12 होता है. ठीक है, उसके बाद जो नंबर हो जाते हैं वो रिपीट कर जाते हैं. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सिमिलरली अब देखते हैं हम 16 के लिए ऐसी पेयरिंग हम फॉर्म कर रहे हैं 1 से 16. 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, सबसे छोटा फैक्टर 1 सबका. तो 16 ऐसे भी आ सकता है, 2 इंटू 8 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16. तो इसके क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे? 1, 2, 4, 8, 16. तो ये इनके फैक्टर्स बन गए. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स जो दोनों के अंदर हैं. सबसे पहला नंबर क्या है? यहाँ 1 तो है ही, 1 तो दोनों में है. फिर हमने देखा 2 भी दोनों में है. फिर हमने देखा 4 भी दोनों में है.
फिर और कोई नहीं, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास नंबर दिए होंगे उनसे छोटे होंगे, ठीक है, वो हो सकता है या फिर वो नंबर से छोटे हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज को प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि हम लोग, को प्राइम मतलब क्या है, दो ऐसे नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर में दो ऐसे नंबर्स जिनके जो कॉमन फैक्टर होगा दैट इज वन। तो ये कैसे टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम ही हो, जरूरी नहीं है। दिस इज अ बिग कंफ्यूजन जो कि एलिमिनेट करना है, ठीक है। हाउ कैन इट बी एलिमिनेटेड, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ सी 2 एंड 3 ये दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। सबसे छोटे से हम स्टार्ट कर लेते हैं 2 एंड 3। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर केवल 1 है इन दोनों का, ठीक है। ये तो केस हो गया जब ये दोनों के दोनों प्राइम है। उसके बाद हम कोई और देखते हैं 14, 4 एंड 15, ठीक है। 4 एंड 15 में भी इफ वी ट्राई टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, इसमें केवल एक ही इनका कॉमन फैक्टर होगा। फिर 4 एंड 5 देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार जो नंबर्स होते हैं, वो जो नंबर है 4 एंड 5 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर मेरा 1 ही होगा। तो जैसे ये 7 और 16 है। अब यहाँ पे क्या है, 16 क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है, जरूरी नहीं है प्राइम नंबर ही, ये कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं जिनका ये कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि भाई उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है नंबर प्राइम हो दोनों के दोनों, ठीक। तो दिस इज को प्राइम नंबर। देन नेक्स्ट थिंग इज कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों या जितने भी नंबर्स हैं उनके अंदर में सेम हो, ठीक है। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। अब मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को, देखते हैं क्वेश्चन में। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स निकाल लें। 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 टाइम्स हम टेबल चलाते जाते हैं तो उसके मल्टीपल्स निकलते जाते हैं, ठीक है। अब 4 के भी ऐसे ही हम लोग टेबल इसकी चला रहे हैं, 6 की भी हमने ऐसी ही टेबल चलाई है, हम लोग कितने भी दूर तक मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। नंबर और नंबर से बड़े जो होते हैं वो सारे मेरे मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। अब देखो फर्स्ट, यहाँ देखा मैंने 3, यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ देखा मैंने 6, 6 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9 इधर नहीं है। फिर ये इधर 12 है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है। तो फर्स्ट जो इनका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो क्या हो गया, 12। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेरा 12 हो गया। देन इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नहीं है, 18 अब यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 21 नहीं है, 24 अब देखते हैं 24 है क्या, यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 24 एंड यहाँ पे भी है मेरा 24। तो नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा दैट इज 24। अगर टेबल्स को हम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, इसे 2 नंबर बाद फिर 36 होगा, तो दैट इज अ कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या ट्रिक याद रखनी है कि जो कॉमन मल्टीपल होता है ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर्स होते हैं। अब देखना 3, 4, 6 है, 3, 4 और 6 इन तीनों से क्या है, बड़े हैं कॉमन मल्टीपल्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है, देयर डिफरेंस इज 2। अब देखो कैसे, प्राइम नंबर 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इफ वी सबट्रैक्ट 5 एंड 2 इनका डिफरेंस आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 एंड 7 है, इन दोनों का भी डिफरेंस करेंगे दैट इज 2। 11, 13 इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आ जाता है। तो ये 100 तक जितने ये ट्विन प्राइम नंबर बन रहे थे इनकी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है, ओके। दीज टू नंबर्स मस्ट बी प्राइम, बस हमें ये ध्यान रखना है कि दो नंबर प्राइम होने चाहिए, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो ये भी डिफरेंस 2 है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी 2 है डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 है डिफरेंस, ओके। जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइम होने चाहिए नंबर्स। यहाँ पे ट्रिक क्या है, नंबर्स प्राइम होने चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसको मैं डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी विद एलसीएम। तो अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक मेथड की तरह हम यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, वो किस चीज के लिए होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर
एक ही प्रोसेस है जिसमें कि एक नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ विच प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स क्या है? जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन उस पूरे मेथड को कहते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको बताती हूँ, जैसे 24 है, तो 24 जो है इसको हम कैसे सबसे छोटे प्राइम उससे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2, 2 12 24 होता है, सिंपल। फिर 2 तो आ गया मेरे पास, अब मैंने इस 12 को फर्दर डिवाइड कर दिया। इनके दो मेथड्स होते हैं, एक तो डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम लोग ऐसे करके नंबर को लिख के तब हम जो प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जो उससे डिवाइड हो सकता है, जैसे हम करते जाते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स। और एक और मेथड क्या होता है, दिस इज डिवीजन मेथड, एंड फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है जो मैं इसके अंदर फॉलो कर रही हूँ। तो 24 जैसे है 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, फिर फर्दर इसको तो 1 इंटू 2 है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, यहाँ पे 2 इंटू 6 हो जाएगा, फिर ये भी यही प्राइम है, तो 2 इंटू 3 these are prime। so हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 2 एंड 3। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 की पावर 3 बिकॉज इट्स 3 टाइम्स इंटू 3 की पावर 1। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नोटेशन है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते क्या है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर के यूनिक प्राइम नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो हम उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, और कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, और ये यूनिक निकलेंगे। ठीक है, ये लास्ट में ना यूनिक निकलेंगे, दो आप फैक्टर ट्री मेथड से करो चाहे डिवीजन मेथड से करो, ये यूनिक फैक्टर्स निकलेंगे लास्ट में। ओके, तो दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या कर देते हैं इसके अंदर। कॉमन मिस्टेक, फर्स्ट थिंग इज हम मिक्स कर देते हैं, वी मिक्स आउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम मिक्स कर देते हैं। ओके, राइटिंग रॉन्ग नंबर्स कई बार हम लोग उतार लेते हैं तो उससे गलत हो जाते हैं। फॉरगेट कर देते हैं हम फैक्टर पेयर बनाना हम भूल जाते हैं, और सोचते हैं कि हमारी जो मल्टीपल्स है दे आर लिमिटेड। ओके, these are the common mistakes. Now quick tricks, what are the quick tricks to solve these types of questions? पहला क्या है, फैक्टर्स का मतलब क्या है, हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने उस चीज को 1 से किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सब मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है, हमारे किसी भी चीज के लिमिटेड होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होंगे, वो नंबर या उससे छोटे होते हैं। और मल्टीपल्स क्या होंगे, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं, कि हम कितने भी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितनी भी बार हम उस नंबर को, जैसे हम 12 है उसको कितने भी बार 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 3 4 5, किसी भी होल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब और एक चीज क्या रिमेंबर करने लायक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। ओके, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, उसके फैक्टर वो खुद और 1 है। Co-prime numbers का क्या होता है, have only one common factor and both do not need to be prime। क्या है, one common factor होता है और जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर हो। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग करते क्या, उसको हम लोग ब्रेक करते, किसको, नंबर को ब्रेक करते हैं टिल ओनली द प्राइम नंबर्स रिमेन, जब तक उसके प्राइम नंबर्स ही रिमेन करते हैं, उसको ब्रेक करने से तब उस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड है। तो these tricks must be remembered to solve the questions very easily. Now these are the practice questions that I asked in the last video. तो first question was factors of 20। अब factors निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, कि factors जो होते हैं नंबर या उससे छोटे होते हैं, तो हम ग्रुपिंग मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। तो 1 इंटू 20 किया, ये एक ग्रुप हो गया इसका। 2 इंटू 10 किया, दैट इज ऑल्सो ग्रुप। 4 इंटू 5 किया, दैट इज ऑल्सो ग्रुप। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 5 10 and 20 itself। ओके, नाउ मल्टीपल्स की बात क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मुझे लिखने हैं, तो इजीली क्या है, 20 जो मेरे पास नंबर है उसको मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, 4 से, 5 से। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हो। मैंने फर्स्ट 5 लिखा था तो फर्स्ट 5 मैंने इस तरीके से निकाले, ये इसके मल्टीपल्स हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। The third question was, is 100 a factor or a multiple of 20? तो क्वेश्चन में पूछा क्या, 100 के बारे में पूछ रहा है कि 100 जो है क्या वो एक फैक्टर है कि मल्टीपल है 20 का। कैसे पता चलेगा, हमने क्या पता, हमें ये पता है कि फैक्टर क्या होते हैं, सब छोटे होते हैं या फिर उसके जितने होते हैं नंबर के जितने। अब देखो यहाँ पे 100 के बारे में ही पूछ रहा है,
और पूछ रहा है क्या ये 20 का क्या है, ये फैक्टर है कि मल्टीपल है। तो पहली बात तो बात यहीं से क्लियर हो गई है कि नंबर तो 20 और ये इससे बड़ा है, तो ये इसका फैक्टर तो नहीं होगा। तो क्या होगा, ये इसका मल्टीपल होगा। ओके, मल्टीपल क्या है, क्योंकि मैं इस चीज़ को किसी भी से मल्टीप्लाई करके 20 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 100। तो वो क्या है, 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 20। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 अ मल्टीपल ऑफ 20? अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रिक्स हैं, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, हमको ये देखना है कि हमें ग्रुपिंग करनी है। किस तरीके से हमको ग्रुपिंग करनी है, एक नंबर को मल्टीपल ऑफ 20 होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए किसका, जो नंबर मेरे पास दिया है और किसी होल नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास यहाँ पे 250 आना चाहिए। अब ये 20 है, ये मैंने 1 से किया तो 20 आता है, ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर करके नियरेस्ट कहाँ आ रहा है, ये 12 और 13 के बीच में आ रहा है। जब हम इसको 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 240, एंड जब हम 20 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 260। तो 250 इन दोनों के बीच में आता है। यहाँ पे बीच में आता है तो क्या है, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा इवनली, 250 को डिवाइड नहीं कर रहा 20 और किसी होल नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे 12.5 कुछ आएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे, 12 से ज़्यादा, 12.5 13 से छोटा। बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, तो डेसिमल वाली चीज़ नहीं होती है। तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल। ओके, दिस इज नॉट अ मल्टीपल, डिवाइड नहीं करता ये इसको। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का एक इजी मेथड है जो कि डिवीजन से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट डिवाइड द नंबर एंड चेक। क्या चेक करना है कि जो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ। अब देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मेरे पास 250 है, यहाँ पे 20 है, मैं इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे 10 बच रहा है। और अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट, अब फिर भी पॉइंट लगेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा। तो अब क्या है, डेसिमल आ गया, तो 250 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इट। मतलब डेसिमल में मेरे पास क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी वो उसका मल्टीपल होता है। इजीएस्ट वे है चेक करने का, सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। इफ एनी रिमाइंडर इज देयर देन इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ इट, नाइदर फैक्टर, ठीक है। अब these are 4 questions regarding this video. The first question is 1 prime or composite? Second is 2 a prime number? Are 8 and 15 co-primes? Are 11 and 13 twin primes? तो इन questions का आंसर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में दीजिएगा, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दीज आंसर्स। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM. Thank you very much for watching. Do like, share and subscribe my channel for more such learning videos. Have a good day.